we are going to start off our discussion with the next subsection, which is about central nervous system. I would like to start off my discussion with a question. The part of nervous system which receives and processes information and initiates actions is. Nervous system का वो part जो कि information को receive करता है और उसको फिर process करके actions initiate करवाता है, वो कौन सा है? Is this statement true for the spinal cord? And the answer is yes. Is this statement true for the central nervous system? And the answer would be yes. And is this statement true for the brain? Answer would be yes. Is this statement true for the peripheral nervous system? Answer would be no. So the best response to this question would be beta, the central nervous system. क्यों? क्योंकि spinal cord और central और brain ये दोनों central nervous system की heading के अंदर आते हैं. So the CNS is covering both the spinal cord as well as the brain. That's why that would be the best response to this question. Another array of questions. First of all, let me present options to you. A option is sensory nervous system, B option is motor nervous system, C option is somatic nervous system, D option is parasympathetic autonomic nervous system, and E option is sympathetic autonomic nervous system. And the statement is, which of the following carries message towards central nervous system? And the best response to this question is sensory nervous system. Another statement, which of the following carries message away from the central nervous system? And the best response to this question is motor nervous system. Another statement, which of the following mediates voluntary movements? So the voluntary movements are mediated by the somatic nervous system. Another statement, which of the following is mainly operative during rest and digest conditions? Basically, the parasympathetic nervous system is mainly operative in our body during rest and digest conditions. And which of the following is operative during stressful conditions? Basically, the sympathetic autonomic nervous system, it prepares our body when we are under stress. Another statement, innervation by which of the following involves only one motor neuron? Right? So you see here, innervation by which of the following involves only one motor neuron? And the best response to this question is somatic nervous system. अभी हम इसकी reasoning आगे चल के discuss करते हैं. Another statement, norepinephrine producing neurons are mainly associated with. तो जो norepinephrine producing neurons हैं mainly वो sympathetic autonomic nervous system के साथ associated हैं. So these are few questions just to test your understanding about the nervous system in the very beginning of our discussion. So you see in here, if we have the overview of nervous system, तो हमारे nervous system के दो major parts हैं. एक central nervous system है, right, which in turn is comprised of the brain, which is present in skull, and the spinal cord, which is associated with the vertebral column. And then we have got the peripheral nervous system, और peripheral nervous system brain और spinal cord के अलावा पूरी बॉडी में जो भी nerves का नेटवर्क है, they are collectively constituting the peripheral nervous system. So you can see head to toe of different nerves, they are present peripherally, collectively they are constituting the peripheral nervous system. So I'm going to explain different segments of the nervous system with the help of this graphical diagram. This is a concept diagram. इससे पहले कि हम central nervous system के बारे में specifically discussion start करें, मैं पूरे के पूरे nervous system का एक overview आपको देना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम specially central nervous system यानी कि brain और spinal cord पे discussion start करेंगे. So in this photograph, this line is basically representing the brain and the spinal cord. So ये जो line है यहाँ पे, ये graphically brain और spinal cord को represent कर रही है. And you see in here, सबसे top की जो line है इस concept diagram में, this is representing the central nervous system. So होता क्या है basically कि जो receptors हैं वो sense organs में present होते हैं, which are then linked with the sensory neurons. So here you can see this sensory neurons, sensory neuron, और ये जो cell body है sensory neuron की, ये पड़ी होती है in the dorsal root ganglia. Dorsal root ganglia.
एंड अल्टीमेटली जो सेंसरी जो रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स के अलोंग ये मैसेज भेजते हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट. सो दे आर सेंडिंग मैसेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो दिस इज द सेंसरी नर्वस सिस्टम. और उसके बाद फिर in response to the sensory input from the sensory nervous system, जो हमारा central nervous system है ये effectors की तरफ मैसेज भेजता है in different ways, राइट. हो सकता है कि वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जरिए मैसेज भेजे या ये भी हो सकता है कि वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जरिए मैसेज भेजे. So in response to the sensory input from the sensory nervous system, किस तरह से हमारा central nervous system different ways से effectors की तरफ मैसेज भेजता है, अब हम ये डिस्कस करते हैं. So you seen here कि ओवरऑल जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, राइट, मोटर न्यूरॉन्स ये अराइज होते हैं फ्रॉम आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पड़ी हुई है. और अगर मोटर न्यूरॉन्स ऑल द वे अराइज हों और जाके ये स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करें, सो इस सिस्टम को हम बेसिकली कहते हैं दिस इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. सो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर सेंसरी इनपुट के नतीजे में कोई ऐसा काम करवाना है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो कि हमारी विल के अंडर आता है, तो ये मैसेज भेजेगा वाया द सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और आप देख सकते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये जस्ट वन न्यूरोनल पाथवे है. एक ही न्यूरॉन जिसकी सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पड़ी है वो ऑल द वे उसका जो एक्सॉन है वो ट्रेवल करेगा टू द इफेक्टर विच आर एक्चुअली द स्केलेटल muscles, or ultimately in response to message which would be coming along the axon of the motor neuron, the skeletal muscles they would contract, right. So this is the somatic nervous system. और उसके बाद फिर we have got the पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सो अगर तो सेंसरी इनपुट के नतीजे में कोई वॉलंटरी फंक्शन रेगुलेट होना होता तो वो रेगुलेट किया जाता सोमैटिक के जरिए. लेकिन अगर कोई इनवॉलंटरी फंक्शन रेगुलेट होना है, राइट, सो वॉलंटरी से मुराद स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन है ऑफ कोर्स. अगर तो कोई इनवॉलंटरी फंक्शन रेगुलेट होना है तो उसको कैरी आउट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सो इनवॉलंटरी को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मदद से कैरी आउट किया जाएगा. और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो मेजर लिम्स हैं, एक है पैरासिम्पथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सिंपथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सो अगर तो सेंसरी इनपुट के नतीजे में कोई ऐसा फंक्शन रेगुलेट किया जाना है जो कि इनवॉलंटरी है और उस वक्त है भी हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट में, देन इट वुड बी कैरिड आउट थ्रू द पैरासिम्पथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. और अगर सेंसरी इनपुट के नतीजे में कोई ऐसा फंक्शन रेगुलेट किया जाना है जो कि इनवॉलंटरी है और उस वक्त है भी हम स्ट्रेसफुल स्टेट में, तो इसको रेगुलेट किया जाएगा वाया द सिंपथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. अब हम पैरासिम्पथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पाथवे को देखते हैं. यू सीन हियर एक न्यूरॉन जिसकी सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पड़ी है, इट अराइजेस और इसका जो एक्सॉन है इट ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस और अल्टीमेटली ये जाके एक स्नैप्स बनाएगा एक दूसरे न्यूरॉन के साथ जिसकी बॉडी जिसकी सेल बॉडी पेरिफेरल गैंग्लिया के अंदर पड़ी होगी. और अल्टीमेटली इस न्यूरॉन का जो एक्सॉन है फिर जाके ये रेस्पेक्टिव इफेक्टर्स को इनर्वेट कर रहा होगा. जो न्यूरॉन इस सेल बॉडी से पहले है इसको हम कहते हैं दिस इज प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. और वो न्यूरॉन जो कि सेल बॉडी के बाद आता है हम कहते हैं दिस इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कलेक्शन होगी सेल बॉडीज की वी गेट द गैंग्लिया, राइट. सो हम कह सकते हैं कि पैरासिम्पथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये टू न्यूरोनल पाथवे है और इसमें जो प्री सिनेप्टिक जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो कोलिनर्जिक है, यानी कि वो एसिटिल कोलिन प्रोड्यूस करता है, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन भी कोलिनर्जिक है, वो भी एसिटिल कोलिन प्रोड्यूस करता है. और यहां पे आप ये भी जरा गौर करें कि जो गैंग्लिया है इन केस ऑफ द पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन दे लाई इन और नियर द इफेक्टर. आप इस ट्रेसिंग में इसकी जो लोकेशन है वो भी देख सकते हैं कि गैंग्लिया इन केस ऑफ पैरासिम्पथेटिक autonomic nervous system they are lying in or near the effectors, final effectors. और उसके बाद अगर हम सिंपथेटिक इनर्वेशन को देखें तो सिंपथेटिक इनर्वेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गन इन आवर बॉडी दैट इज अगेन टू न्यूरोनल पाथवे.
इसमें भी एक हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा, लाइक ये एक मोटर न्यूरॉन है और इसकी जो सेल बॉडी है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पड़ी है। देन वी आर हैविंग अ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जिसकी सेल बॉडी गैंग्लिया के अंदर पड़ी हुई है। सो ऑफ कोर्स हियर वी आर हैविंग द गैंग्लिया, बट इन केस ऑफ द सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम the ganglia are located near the central nervous system। हमने पैरासिम्पैथेटिक के केस में क्या देखा था, गैंग्लिया आर लोकेटेड इन और नियर द इफेक्टर्स, जबकि सिंपैथेटिक के केस में क्या है, गैंग्लिया आर लोकेटेड नियर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा ये एक शॉर्ट न्यूरॉन होगा, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होगा इट वुड बी अ लॉन्ग न्यूरॉन। सो हम ये कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो a two neuronal pathway। It's also a two neuronal pathway। और आप सादा अंदाज से इस तरह से भी कह सकते हैं कि sympathetic innervation of any particular organ in our body is basically a two neuronal pathway, the short pre-ganglionic and the long पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और यहां पे आप ये भी गौर करें कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है इन केस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इवन दिस इज कोलिनर्जिक न्यूरॉन बिकॉज दिस इज प्रोड्यूसिंग एसिटाइल कोलिन। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है इन केस ऑफ आवर सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये एड्रिनर्जिक न्यूरॉन है एंड दिस इज प्रोड्यूसिंग नॉरएपिनेफ्रिन। सो दिस इज यूनिक फॉर द सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है इन केस ऑफ बोथ द पैरासिम्पैथेटिक एंड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट, ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन ही है, राइट। इसी तरह से इवन जो न्यूरॉन स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट कर रहा था वो भी कोलिनर्जिक ही है, राइट। हाँ, सिर्फ एक मेजर डिफरेंस कहां पे आया, द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स इन द सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि एड्रिनर्जिक है, विच मीन्स दे प्रोड्यूस नॉरएपिनेफ्रिन। यहां पे वन मेजर एक्सेप्शन टू द रूल है और वो क्या है कि कुछ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऐसे भी होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो कि स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो एड्रिनर्जिक नहीं बल्कि कोलिनर्जिक होते हैं, यानी कि वो नॉरएपिनेफ्रिन की बजाय अपने सिनेप्स पे या अपने इफेक्टर के साथ जंक्शन पे वो एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करेंगे। सो दैट्स मेजर एक्सेप्शन टू द रूल। And then we have got the adrenal medulla। Basically जो adrenal medulla है, अब ये भी कह सकते हैं कि adrenal medulla ये modified ganglion है। It's a modified ganglion of the sympathetic autonomic nervous system। इसमें भी basic idea same है। We have got the preganglionic neuron, we have got this preganglionic neuron and this is making synapse with the different cells in the adrenal medulla जो कि एक modified sympathetic ganglia। फर्क क्या है, फर्क यह है कि बजाय कि किसी न्यूरॉन के जरिए स्पेसिफिकली ये अपने इफेक्टर्स तक एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन को भेजता, अब जो एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल मेडुला इज गोइंग टू पोर इट्स सिक्रीशंस जो कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, जो कि अब हम जिनको हार्मोन्स कहेंगे क्योंकि इसने अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में डाल देना है एंड ब्लड के अलोंग एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन ट्रेवल करते हुए पूरी बॉडी में जाएंगे और जिन जिन इफेक्टर्स के ऊपर इनके रिसेप्टर्स होंगे यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स होंगे, उन रिसेप्टर्स के ऊपर सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले एक्शंस आ जाएंगे। सो एड्रिनल मेडुला ये भी आप कह सकते हैं कि ये एक मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन है। सो ये भी सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही का एक सब सेगमेंट है, लेकिन इसमें गैंग्लियन के बाद वी हैव गॉट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम देयर, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक न्यूरोनल पाथवे नहीं है जो कि टारगेटेड इफेक्टर्स तक जा रहा हो। सो हमने इस ट्रेसिंग के जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सारे जो सेगमेंट्स हैं हमने उनको कोरिलेट किया। मैं इसको सम अप करता हूं सारी इंफॉर्मेशन को कि जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है बेसिकली ये क्या करता है, सेंसरी नर्वस सिस्टम डिफरेंट सेंसेशंस को परसीव करके ये मैसेज भेजता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन आई है सेंसरी नर्वस सिस्टम से वो प्रोसेस होगी और उसके नतीजे में अगर कोई वॉलंटरी फंक्शन रेगुलेट होना है दैट वुड बी रेगुलेटेड वाया द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि
वन न्यूरोनल पाथवे है, और अगर कोई इनवॉलंटरी फंक्शन रेगुलेट होना है दैट वुड बी कैरिड आउट बाय द पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इफ द इंडिविजुअल इज इन रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशंस, एंड वुड बी कैरिड आउट बाय द सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इफ द इंडिविजुअल इज इन स्ट्रेसफुल स्टेट. सो इनवॉलंटरी जो एक्शंस हैं वो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू रेगुलेट होंगे, एंड देयर वर फ्यू मेजर एक्सेप्शंस टू द रूल्स जो कि हमने जिनको स्पेसिफिकली हमने डिस्कस भी किया. और साथ हमने ये भी पॉइंट जनरेट किया कि इस ट्रेसिंग के अंदर कि सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी वो डॉर्सल रूट गैंग्लिया में होती हैं, और हमने ये भी देखा कि सोमैटिक इनर्वेशन ऑफ एनी स्केलेटल मसल फाइबर बेसिकली वो वन न्यूरोनल पाथवे है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक इनर्वेशन ये दोनों टू न्यूरोनल पाथवे हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि पैरासिम्पैथेटिक के केस में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो लॉन्ग है, जबकि सिंपैथेटिक के केस में पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लॉन्ग है. और इसकी रीजन ये है कि पैरासिम्पैथेटिक के केस में जो गैंग्लिया हैं दे लाई इन और नियर द इफेक्टर, एंड सिंपैथेटिक के केस में द गैंग्लिया दे लाई क्लोज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड हमने फिर बात की एड्रिनल मेडुला के बारे में भी कि एड्रिनल मेडुला क्या है, दे आर मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लिया. सो आई होप कि अब इस अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे अब डिफरेंट जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आप उनको वेरी इजीली एंड कंफर्टेबली इन सेगमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में आंसर कर सकेंगे. So now let's sum up our discussion with the help of a flow sheet. So उसी ट्रेसिंग को अब समझ लें कि मैंने इस फ्लो शीट की शेप दे दी है. So if you talk about the nervous system, there are two major limbs of the nervous system. इसके दो मेजर सेगमेंट्स हैं. वन वी हैव गॉट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंडली वी हैव गॉट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इन टर्न दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. जो ब्रेन है इट रिसीव्स एंड प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, इनिशिएट्स रिस्पॉन्सेस, स्टोर्स मेमोरीज एंड जनरेट्स थॉट्स एंड इमोशंस. ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर है हम आगे चल के अलग से भी डिस्कस करते हैं. जबकि स्पाइनल कॉर्ड इट कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स मेनी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज. और उसके बाद फिर अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन टर्न इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर डिवीजन्स. इसके दो मेजर सब सेगमेंट्स हैं. एक इसकी मोटर डिवीजन है और दूसरी इसकी सेंसरी डिवीजन है. मोटर डिवीजन ऑफ कोर्स इट्स कंप्राइज्ड ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स एंड द सेंसरी डिवीजन इज कंप्राइज्ड ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स. सो अब ये भी कह सकते हैं कि मोटर जो डिवीजन है इसका काम क्या है, इसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स यानी कि मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ मैसेज लेके जाना है, जबकि सेंसरी डिवीजन ने मैसेज को ओवरऑल सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आना है. एंड जो मोटर नर्वस सिस्टम है इन टर्न इसके आगे फर्दर दो सब सेगमेंट्स हैं. अब मोटर की वो डिवीजन जो कि वॉलंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करेगी वो सोमैटिक डिवीजन होती है, उसको हम कहेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स, जबकि मोटर की वो डिवीजन जो कि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करेगी हम उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं. और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के इन टर्न आगे फर्दर टू लिम्स हैं. अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वो डिवीजन जो कि स्ट्रेसफुल स्टेट में यानी कि फाइट, फ्लाइट और फ्राइट जैसी स्टेट्स में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है और कैलिब्रेट करती है विद द न्यू रिक्वायरमेंट्स अंडर स्ट्रेसफुल स्टेट, उसको हम कहते हैं दिस इज अ सिंपैथेटिक डिवीजन, या हम इसको सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का नाम भी दे देते हैं. जबकि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसकी वो डिवीजन जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट में मेनली ऑपरेटिव होती है हम उसको पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कहते हैं, या हम इसको पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी कह देते हैं. सो ये एक ओवरव्यू है पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम का, एंड डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम दे आर वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर, जैसे कि हमने प्रीवियस ट्रेसिंग में भी डिटेल से डिस्कस किया. सो सेंसरी के जरिए जो इनपुट्स हैं दे वुड बी सेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर के जरिए जो आउटपुट्स हैं वो भेजी जाएंगी टू दी रिस्पेक्टिव इफेक्टर्स. अगर वॉलंटरी हैं तो सोमैटिक के जरिए, इनवॉलंटरी है तो ऑटोनोमिक के जरिए, and so on. And I have got a question for you at this stage. The neural arches are responsible for protection of. A option is brain, B option is gray matter, and C option is spinal cord, D option is brain and the spinal cord. तो जो neural arches हैं basically they are associated with the vertebra, और जो vertebra हैं they are actually responsible for the protection of the spinal cord. So best response to this question is spinal cord.
एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू सीएनएस। एक्चुअली हमारा ये जो सब सेक्शन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन इससे पहले कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते, हमने पूरे नर्वस सिस्टम की जो मेजर डिवीजन्स हैं हमने इनको डिटेल से डिस्कस किया है। And now let's talk about the introduction to the central nervous system. In the extreme left column we have got feature, in the second column we have got brain, and in the extreme right column we have got the spinal cord. First of all let's talk about their location. Brain ये cranium में located है जो कि skull का part है, which is the part of skull. Skull के अंदर बेसिकली दो मेजर पोर्शंस होते हैं, एक क्रेनियम और दूसरे नंबर पे फेशियल स्केलेटन। सो इसमें जो क्रेनियम है दैट इज एनक्लोजिंग द ब्रेन, जबकि स्पाइनल कॉर्ड कहां पे है? स्पाइनल कॉर्ड इज एक्चुअली क्लोज इन द वर्टिब्रल कॉलम। सो जो 33 वर्टिब्रा हमारे वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है, हर वर्टिब्रा के सेंटर में एक होल होता है। सो सारे के सारे जो 33 वर्टिब्रा है उन सब के मिलने से जो वर्टिब्रल कैनाल एक बनती है, उस वर्टिब्रल कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। एंड देन इनकी प्रोटेक्शन कैसे होती है? ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिकली एक तो बोनी पार्ट है, राइट, और जो कि क्रेनियम है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी बोनी पार्ट है जो कि न्यूरल आर्चेस हैं। सो जो क्रेनियम है ऑफ कोर्स दिस इज पार्ट ऑफ द स्कल, एंड जो न्यूरल आर्चेस हैं दे आर एक्चुअली द पार्ट्स ऑफ द वर्टिब्रा। सो अब कह लें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनके लिए जो पहली प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज बोनी। सो मेजर प्रोटेक्शन इनकी जो है वो किसी ना किसी बोन से हो रही होगी। सेकेंडली बोथ ऑफ देम दे हैव गॉट मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है? बेसिकली ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, द ड्यूरा मैटर, अरेक्नाइड एंड द पाया मैटर। सो ये जो तीनों लेयर्स हैं बोनी लेयर के बाद ये तीनों मेनिंजेस ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट अनदर थिंग इज वेल विच इज प्रोटेक्टिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड और प्रोटेक्टिंग आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दैट इज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक अनदर एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है जो कि नेचर ने ऐड की है फॉर प्रोटेक्टिंग दिस सेंसिटिव ऑर्गन्स और सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर बॉडी, दैट इज ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। Cerebrospinal fluid basically a plasma like fluid है and it acts as a cushion against the bumps and the bolts. So ये cushion का काम देता है cerebrospinal fluid mainly. So ये protective layers ही. So we have got the bony layer for brain and the spinal cord. Brain के केस में cranium, spinal cord के केस में neural arches. Then we have got the meninges and last of all we have got the cerebrospinal fluid. अब जो cerebrospinal fluid है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेसिकली वो ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, इन दोनों में जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होती है जो कि अरेक्नॉइड और पाया मैटर जो कि 2 मेनिंजेस हैं इनके दरमियान में होती है, वहां पे cerebrospinal fluid प्रेजेंट होता है। अभी हम आगे चल के फोटोग्राफ में भी इसको देखते हैं, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कुशन से एज अ कुशन ये एक्ट करता है और बम्प्स एंड बोल्ट से उसको प्रोटेक्ट करता है। सो दिस इज अ फोटोग्राफ विच इज शोइंग द डिफरेंट प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ द ब्रेन। सो इसमें आप देखें सबसे बाहर जो लेयर है दैट इज द स्कैल्प। स्कैल्प क्या है? बेसिकली ये हेड की स्किन है, एंड बीनीथ द स्कैल्प देयर इज अ बोनी लेयर, और उस बोनी लेयर को हम क्या नाम देंगे? दैट इज द स्कल। सो सबसे जो मेजर प्रोटेक्शन है टू द ब्रेन दैट वुड बी प्रोवाइडेड बाय दिस स्कल। ये क्वाइट टफ इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड आफ्टर द स्कल वी हैव गॉट अनदर लेयर, राइट। स्कल के बाद फिर हमारे पास एक और लेयर है, राइट। वी हैव गॉट द पेरियोस्टल ड्यूरा मैटर एंड द मेनिंजियल ड्यूरा मैटर। सो कलेक्टिवली ये आप कह लेंगे ड्यूरा मैटर जो है इसके आगे 2 सब सेगमेंट्स हैं, लेकिन स्कैल्प और स्कल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर है वो मेनिंजेस में आती है, राइट। सो दैट इज द ड्यूरा मैटर, एंड inner to the dura matter we will be having the arachnoid matter, right, जो कि अगेन मेनिंजेस के हेडिंग के अंदर ही आती है। एंड आफ्टर द arachnoid matter we have got the pia matter, right. so next we have got the pia matter. so इसमें आप देखें जरा कि ये हमारे पास सबसे पहले स्कैल्प आई, हेड की जो स्किन है, फिर हमारे पास स्कल आई, स्कल के बाद फिर ये जो ब्लू सेगमेंट आपको नजर आ रहा है ये कलेक्टिवली क्या है? ये ड्यूरा मैटर है। ड्यूरा मैटर के बाद ये जो ग्रेइश सा कंटेंट आपको नजर आ रहा है ये क्या है? दिस इज द अरेक्नॉइड मैटर। और उसके बाद फिर ये जो लेयर आपको नजर आ रही है बेसिकली दिस इज द पाया मैटर।
और जो ड्यूरा मैटर है, और यू सीन हियर ड्यूरा मैटर के बाद वी हैव गॉट द अरेक्नॉइड मैटर, और अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान में जो स्पेस है इसको हम कहते हैं दिस इज सब अरेक्नॉइड स्पेस, यानी कि ये अरेक्नॉइड के नीचे वाली स्पेस है, दिस इज अ सब अरेक्नॉइड स्पेस, और यही वो स्पेस है जहां पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा। एंड इनर टू द पाया मैटर आप देख सकते हैं कि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कुछ सेगमेंट आपको नजर आ रहा है, राइट। सो अगर आप कह लें कि जो हमारी स्कल है इसके टॉप से आप आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स जाना शुरू करें तो आपको ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इस तरतीब में नजर आएंगे। लाइक सबसे पहले आपको स्कैल्प नजर आएगी, फिर आपको स्कल मिलेगी, देन यू विल गेट द ड्यूरा मैटर, एंड आफ्टर दैट द अरेक्नॉइड मैटर, एंड आफ्टर दैट द पाया मैटर। और अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान में आपको ये सब अरेक्नॉइड स्पेस मिलेगी जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा विच वुड बी एक्टिंग एज अ कुशन, और अल्टीमेटली इनर टू द पाया मैटर यू हैव गॉट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यहां पे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन लेयर्स के सीक्वेंस से रिलेटेड पूछा जा सकता है। लाइक एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि इनर मोस्ट मेनिंजियल लेयर कौन सी है, राइट। यू सीन हियर दिस इज द पाया मैटर। आउटर मोस्ट जो मेनिंजियल लेयर है वो कौन सी है, दिस इज द ड्यूरा मैटर। कौन सी मेनिंजेस ऐसी हैं जो कि स्कल के साथ एसोसिएटेड है, अगेन दिस इज द ड्यूरा मैटर, राइट। एंड which layer is present inner to the dura matter, of course that is the arachnoid matter, and so on. So ये sequence से related exam में question पूछा जा सकता है। So hope that now you have got a good idea that how our brain is being protected by so many different layers. So अभी हमने brain की protective layers को discuss किया, and now let's start off our discussion with the protective layers of the spinal cord. Let me orient you towards this photograph. Just imagine करें कि this marker is representing the वर्टिब्रल कॉलम। अगर आप इस वर्टिब्रल कॉलम को किसी भी सेक्शन प्लेन पे आप इसको ले लें, मे बी आप इसको थोरेसिक वर्टिब्रा से के पॉइंट से कहीं से इसको कट करें, कट करके अगर इसके क्रॉस सेक्शन को आप देखें तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। सो दिस इज द anterior aspect of the individual and this is the posterior aspect of the individual. So इसमें अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें, यहाँ पे देखें कि इसमें जो ये वाला जो एरिया प्रेजेंट है, राइट, दिस थिंग ओवर हियर, दिस इज बेसिकली द स्पाइनल कॉर्ड। अब हमने देखना ये है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये लेयर बाय लेयर किस तरह से प्रोटेक्ट की जा रही है। सो अगेन वी हैव गॉट फर्स्ट प्रोटेक्शन द बोन ऑफ द वर्टिब्रा, लाइक जो न्यूरल आर्चेज हैं बेसिकली वो पहली प्रोटेक्टिव लेयर है। सो बोन, जैसे हमने देखा था कि ब्रेन के केस में स्कल वाज द फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर, तो यहाँ पे जो न्यूरल आर्चेज हैं जो कि वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर के तौर पे प्रेजेंट है, बेसिकली दे आर मेकिंग द फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर। एंड आफ्टर दैट वी हैव got the first meninges which are dura matter, and after that we have got the arachnoid matter, and then we have got the pia matter from outwards to inwards. So ये जो layers हैं ये outwards to inwards arranged हैं। So you seen here कि हमारे पास ये bony portion आ गया, फिर हमारे पास ये dura matter है, and then we have got this arachnoid matter, then we have got this pia matter, right, and inner to that we have got this spinal cord, right. So that's how nature is actually protecting the spinal cord. and again जो अरेक्नॉइड और पाया मैटर है इनके दरमियान में इवन स्पाइनल कॉर्ड में भी जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो